اس کی پہلی 5 آیاتیں. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے ہمت نہ ہارنا. آمین. دعا میں ہمت نہ ہارنا. خداوند کے مقدس پاک کلام کے اندر حضرت داؤد اس کو لکھتے ہیں. یہ شخص حضرت داؤد جو تھا اس نے 4000 ساز اپنے ہاتھوں سے بنائے. کتنے؟ 4000 ساز یہ اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے. اور بنانے کے بعد یہ پھر یہی بات بیان کرتا ہے کہ گویا صادق مجھے مارے تو میرے سر پر کیا ہوگا؟ روغن ہوگا. اور پھر کہتا ہے میرا سر ان سے انکار نہیں کرے گا. بائبل مقدس ہمیں بڑی خوبصورت بات بیان کرتی ہے. اے خداوند میں نے تیری دہائی دی ہے, میری طرف جلد آ اور میری دعا تیرے حضور بخور کی مانند ہو, اور میرا ہاتھ اٹھانا شام کی قربانی کی مانند ہو. ہم گیت گاتے نا, ہاتھ چکا منگا دعا. جب ہم یہ دعا سلطانی گاتے, میری دعا تیرے حضور شمع کی قربانی کی طرح قبول ہو. لیکن وہاں لفظ سے شام یا موسیقی کہتے ہیں شمع کی قربانی کی طرح, یعنی شام کی قربانی بائبل کہتی ہے. یہ کون سی قربانی؟ شام. لیکن بائبل ہمیں ایک اور بات بیان کرتی ہے کہ یہ جو شام کی قربانی ہے یہ بڑی خاص ایسے قربانی ہوا کرتی تھی. یہ بڑی خاص قربانی جو تھی یہ بائبل کے اندر اس کا ذکر کیا جاتا ہے, اور بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے. اور یہ سورج کے غروب ہونے سے بالکل درمیان میں, جب سورج آدھا آپ کو نظر آتا ہے نا, کبھی کبھی آدھا سے غروب ہو چکا ہے اور آدھا ہونے والا ہے, اس سے کہتے ہیں شام کی قربانی. اور ان میں 3 چیزیں لازم پائی جاتی تھی. وہ کون کون سی تھی؟ وہ بائبل ہمیں کہتی ہے یہ جو قربانی جو خدا نے اپنے لوگوں کو آئین دیا, خدا نے کہا اور سوالے غروب ہونے تک, سورج کے غروب ہونے تک, اور یہ قربانی جو ہے تم نے گزار. اور پھر کہا اس کے ساتھ آہد ہوگا, اور وہ آہد جو ہوگا جو پرومس ہوگا, پرومس ہمیشہ نمک کے ساتھ کیا جاتا تھا. نمک خدا کی چوری میں لایا جاتا تھا اور پھر اس کے ساتھ آہد کیا جاتا تھا. آمین. اور پھر بائبل کے اندر ایک اور بات لکھی ہے, اور یہ قربانی میں کتنی چیزیں تھی؟ 3. اور پہلی بات یہ ہے کہ یہ قربانی کے ساتھ تیل دیا جاتا تھا. تیل اس کے ساتھ ایسے قربان گاہ کے اوپر پیش کیا جاتا تھا جو روح القدس کی علامت ہے. آمین. آمین چھوٹا ہے, اور جو روح القدس کی علامت ہے. پھر اس کے بعد ایسا ہے لبان دیا جاتا تھا, بخور دیا جاتا تھا جو گریس یعنی فضل کی علامت ہے. آمین. جو فضل کو سار کہتا. پھر اس کے بعد نمک دیا جاتا تھا, تیل, بخور یعنی لبان, اور اس کے بعد نمک دیا جاتا. نمک وفاداری کا علامت ہے. آمین. تابعداری کی علامت ہے, اور ایسے ہے خاکساری کی علامت ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ 3 چیزیں لگائی جاتی تھی. لگانے کے بعد اور پھر یہ شام کو قربان گاہ کے اوپر لائی جاتی تھی, اور پھر سردار کہن اس کو لیتا, اس کے لیے برکت جاتا. برکت جانے کے بعد وہ خدا کی حضوری میں مقبول ہوتی تھی. لیکن حضرت داؤد کہتے ہیں میں تیرے نام کی دہائی دوں گا. آمین. میں انکار نہیں کروں گا, میں دہائی دوں گا. اور آگے کیا لکھا ہے, اور جب میں نے تجھ سے دعا کروں تو میری آواز پر کان. آگے لکھا ہے میری دعا تیری حضور بخور کی مانند ہو. کبھی ہم نے یہ کہا, ہم نے یہ کہنا ہے میری دعا تیری حضوری میں بخور کی مانند ہو. ہاللیلویا. کئی بار آپ نمکین دے کا دینے ہیں نا, مجھے بہت سارے لوگ بہتے ہیں مٹھیاں کیوں دے دیں. میں مٹھیاں دو, فتوہ نہیں کوئی نہیں, فتوہ نہیں کوئی, نہ میں فتوہ دیتا ہوں نہ کوئی عیب ہے, لیکن خدا کا عہد جو ہے وہ نمک کے ساتھ ہے. آمین. آمین. بائبل مقدس آگے ہمیں بیان کرتی ہے, لکھا میری دعا تیرے حضور بخور کی مانند ہو, اور لکھا اور میرا ہاتھ اٹھانا شام کی قربانی کی مانند ہو. ہاللیلویا. جو تیری سنی میں مقبول ہوتی ہے, جو تیری سنی میں پسندیدہ ہوتی ہے, جو تیری آرزو ہے, جو تیری تمنا
विश है, मेरी दुआ उनकी माने दो जैसी कुर्बानी कबूल होती है। आमीन। और फिर आगे क्या लिखा है, ऐ खुदा मेरे मुंह पर आ गल औखी, हाँ ऐ गल मेरे मुंह ते की गल पहले का मतलब होता है कोई चुगली नहीं, कोई गाली नहीं, कोई ऐप सोई नहीं मेरे मुंह पे। बाइबल के अंदर हजरत दाऊद कहते जब तक शरीर मेरे सामने है मैं अपने मुंह को लगाम दिए रखूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बातचीत करूंगा, क्योंकि मेरी दुआ तेरी हुजूरी में रायगा ना हो जाए। और खुदा का कलाम हमें आगे क्या लिखा है सिखाता है, और मेरे दिल को किसी बुरी बात की तरफ माइल ना होने दे कि बदकार के साथ मिलकर शरारत के कामों में मसरूफ हो जाऊं, मुझे उनके नफीस खानों से पास रख। हालेलुया। कई बार आप खाने के लालच नहीं काम पुठे कर लेने, वो खुदा ने समझ गए आप वो काम खुद वो खाना खुदा को पसंद नहीं होता। हज़रत दाऊद कहते खावा नाना दे स्वादले खाने उन्हां दे विचों ना आपा एक ग्राम नहीं छड़ना, सारा ही खा जाना। कहता खावा नाना दे, ऊंची बोलो, खावा नाना दे उन्हां दे विचों ना एक भी ग्राम। फिर अगर लिखा है और सादिक मुझसे मारे, ये बड़ी खास बात है, कहता सादिक मुझे इतने किस्म मारा जाएगा तुसी इंज करो इधर इधर हो जाओ, है कि गल है मैं चर्ची नहीं होना, मैं नहीं होना चर्च। मैंने पादरी इथों उठा के ए देखो कुर्सी कितनी सोनी मैंने बना के दी थी एक बंदे ने पैशबाज ने, मैं लास्ट में इसके ऊपर बैठता हूँ। शौक ही नहीं, शौक यही है। मेरी कई बार मैं जनाना ना अपनी बीवी मेरी लत्ता धो दिया, आदमी आते कुर्सी तो बैठ जा करो, मैं कहती जो दुआ खड़े होकर है उसका कोई सिला ही और है। ये तो इंज लड़ाई हुई सुषमान तो पता है ना अबलीस कहता है मैनू दो कुर्सी, खुदा लेगा तेरी ऐसे एक मिनट और क्या बाइबल क्या कहती लिखा है, सादिक मुझे मारे तो मेहरबानी, कई बार मेहरबानी से घर आए हो, अगर सादिक मुझे मारे, सादिक मुझे, सादिक नहीं करी को तलवार फड़ी हुई ना, सादिक नहीं रासबाज ईमानदार बिलीवर आपके रूहानी स्पिरिचुअल फादर सादिक मुझे मारे तो क्या होगी उसकी। यहां जो मारने का लफ्ज है वो है तभी करे, मेरी ऐसा तरबियत करे, मुझे सिखाए, मुझे बताए कि कैसे बैठना है, कैसे गाना है, कैसे चलना है, कैसे सोचना है, कैसे मैंने उसकी सुनी में जा रहा। सादिक मुझे मारे तो मेहरबानी होगी। आमीन। कई बार पाने वो तो डांटता ही बड़ा है, जिस उस्ताद अज डांटते होंगे सी ना पहले स्कूल अज उन्होंने कदर है, ऐसा है या ना। फिर लिखा है वो मुझे तभी करे तो गोया सर पर रोगन है। हालेलुया। बाइबल कहती है जब तेज सर को में डाला जाता है, ये रोगन बादाम के रोगन की बात है, ये रोगन शतूर के रोगन की बात है, ये उनकी है। कई बार ये बहकी को जाने आगे तेरा तालु खुश है, तेल तूल पाया करो, आगे ना बादाम का रोगन पाया करो, जैतून का पाया करो, गिरी का पाया करो, होर केड़ा केड़ा कोई दस सकदा नहीं पता। अब आलमे कर लू तो तालु खुश हो जाए, तो केड़ा केड़ा रोग है, आमले दा है। लेकिन बाइबल में क्या सादिक कहता है वो मुझे तभी करे तो कोई सर पर रोगन है। आगे क्या मेरा सारी इससे इनकार नहीं करेगा। आमीन। सादिक को या मुझे मारे मेरे सर पर क्या होगा, रोगन होगा, मेरा ताल्लुक खुश्क नहीं होगा, मैं खुदा की प्रेजेंस में बढ़ूंगा, मैं उसकी हुजूरी में बढ़ूंगा। लेकिन बाइबल में लिखा ऐ खुदावंद मैंने दहाई दी है कि मेरी तरफ जल्द आ, मैं तुझसे दुआ करूंगा। कहता मैं इंतजार करूंगा, मैं दुआ करके इंतजार करूंगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं भागूंगा नहीं, मैं जल्दी नहीं करूंगा, मेरे कामों को जल्दी नहीं है, मुझे तेरी दुआ को जो मैंने तेरी हुजूर की जवाब का मुंतजर हूं। आमीन। बाइबल हमें सिखाती, खुदा का कलाम हमें सिखाता है, और बाइबल हमें ये बता चुकी है और बताती है, कहती गोया सादिक मुझे मारे तो मेरे सर पर रोगन होगा, मेरी दुआ तेरी हुजूरी में शाम की कुर्बानी की मानद हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ऊंची बोलो आमीन। अपने हाथ उठा के बोलो आमीन। तो बाइबल मुकद्दस हमें एक और बात बताती है, हमने हिम्मत नहीं
नहीं, दुआ का जवाब नहीं ना, एक हफ्ता नहीं आया, अगले हफ्ता बस चर्च नहीं होगा भाई, अगले हफ्ते हम प्रेयर नहीं करनी, हमने बाइबल नहीं पढ़ी, ये काम कभी स्टॉप नहीं करना, ये काम कभी आपने स्टॉप, आप इंतजार में बैठो। आपको याद है एक जो था वो काजी जो था, और वो उस इलाके को अपने आप को खुदा समझता था, खुदा से नहीं लिखा है डरता था। और मकदस लूका रसूल के इंजील के अंदर 18वें बाब के अंदर लिखा है कि शख्स एक काजी था, और काजी जो था और ये खुदा से नहीं डरता था, बल्कि एक बेवा इसके इंसाफ के लिए आई थी। बेवा किसके लिए आई थी? अच्छा, वो बेवा को ये कहता था ना कि तूने 5 बजे आना, ते बेवा 4 के 2:30 बजे उधर पहुंच जाना। लेकिन वो सोचता रहा, वो सोचता रहा, वो इस बात को सुनता रहा, और एक दिन उससे कहा, देखिए मैं खुदा से भी नहीं डरता, मैं खुदा से भी, और मैं किसी आदमी की परवाह भी नहीं करता, लेकिन ये बेवा जो है ये मेरे इंतजार में आती है, बल्कि पहले आ जाती है। लेकिन मैं ये कहता हूं, और बाइबल में लिखा, और बेवा ने काजी के नाक में दम कर दिया। आप खुदा के नाक में दम कर दे, फिर वो कहे ये बरकत तेरी है। दम करना है। जब आप दुआ पे दुआ करेंगे, खुदा जवाब देगा या नहीं देगा? लिखा है, बाइबल कहती ना वो ऊँगता है ना वो साढ़े तरह इंज खगारे नहीं मारता। कई बार खगारे ना रगाला भी लगी होंगी। हाँ बाइबल क्या कहती है? ये सुस्ती है। ये क्या है? सुस्ती है। मैंने कई लोग आते तुसी जो दुआ करते वो जागने ने पर नींद बड़ी होंगी। मैं क्या मैं आ दुनिया का भी सो। बाइबल क्या कहती है? लिखा है, काजी बार काजी अपनी चेयर सुझा आया, आगे उससे कहता है इस बेवा ने मेरे नाक में दम कर दिया है। उसका बेवा को बोलो, तख्त लगा, लगने के बाद उसने उसका इंसाफ किया। आप जब दुआ में कभी भी है ऐसा महसूस ही नहीं करते, पर आसमान खुलता है। आमीन। नक च दम कर दो, काम जो आप कर जो को पैसे लेने हुए नक च दम करीदा नहीं है, फोन ते भी करीदा, वो दम ही होता ना नक च, हाकी दो मिलते। फिर अगली खोर गल करी दी, ओदे तेरी शर्म नहीं सी आई लैन लगे है, ऐसा नक च दम करीदा वो वेखने में गया। काश आप दुआ में, रोजे में, फंद में, प्रस्तिश में, बाइबल स्टडी में, घुटने टेकने में आप अव्वल है तो बरकत आपकी अव्वल है। आमीन। दानिएल ने ऐसा है, बाइबल कहती हिम्मत नहीं आई उससे, दानिएल को जब ये खबर पहुंची, खबर हननिया, मिसाइल, असरिया 4 बंदे वहां मौजूद थे, और बादशाह ने कहा सारे जादूगरों को ऐसा है कि कत्ल करो, और कत्ल करने के बाद अगर कोई मेरे ख्वाब की तमीर करे तो वेलन गुड, सारे बख्शे जाए, अगर नहीं तो सबको क्या करो? हाँ जी, क्या करो? पीछे कैमरे वाले कोशिश करे जिन्हों के बच्चे ने ना मैं माइंड नहीं करता उन्होंने फड़िया करो ताकि अपनी को रखा करो। लेकिन बाइबल कहती है, और बाइबल हमें सिखाती है, खुदा के कलाम कहता है कि उस बंदे कितने हैं वहां? 4। कितने हैं? कितने हैं? हननिया, मिसाइल, असरिया, दानिएल। हननिया, मिसाइल, असरिया, बंदे कितने हैं? बंदे कितने हैं? पर इराक के अंदर बंदे 4 हैं। बादशाह ने नबूकदनेस्सर जारी कर दिया होगा कि बंदे मार दिए जाए, तो जादूगर फाल गया, तमाम सहनचूमी, तमाम लोग ना मेरा को ख्वाब बयान कर सका ना उसकी तबीर बयान है। तो बात दानिएल के कानों तक पहुंची। उसके 3 बंदे और थे, हननिया, मिसाइल, अज़रिया, जिसे कहते सिदरक, मिशक, अब्द। उन्होंने जाके फौरन ठाया, उन्होंने कहा ताऊ ठो, वो भी अगो बंदे चंगे सी, वो भी गल नहीं पाई, लड़ाई नहीं उन्होंने की थी। अगो आख्या नहीं एडा तू पादरी कि एडा तू हाजी कि। कई बार रोज रख ले तो बुढ़ी बंदे तो बंदा बुढ़ी है हाजन है हाजी या बच्चे रख ले है 100 सुआ खा के मिली, मैं क्या 200 खा के जाए, जान तो दो, भावे 200 खा के जाए और जान तो दो। बाइबल क्या कहती? खुदा का कलाम हमें सिखाता है, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, और जब शख्स वहां गए और इसमें वो सोए हुए थे, उसको उठो, और सारी रात उन्होंने घुटने टेके रखे,
हिम्मत नहीं हारी और जरूर कहा होगा हमें दुआ का जवाब चाहिए। हालेलुया, हमें दुआ का। तो बाइबल में लिखा है और पोप फटने से पहले खुदा ने राज उनके पर खोला और दानियल उनके ऐसा दरबार में जाकर कहता है बादशाह मेरा खुदा राज खोलने की कुदरत रखता है। किया क्या हाँ नहीं वकील से कितने नहीं ना मारना बहुत है, थोड़ा इशारा करना, ताली बजाना, हाथ उठाना फतह मंदी की अलामत है। क्या किया उन्होंने? बंदे चार हैं, बंदे पूरे इराक का तख्ता उलट दिया। आमीन। एहो जी दवावां होनी चाहिए, मोहल्ला चेंज हो जाए, कॉलोनी चेंज हो जाए, परिवार चेंज हो जाए, खानदान चेंज हो जाए। लिखा है मैंने तेरी दुहाई दी है। कई बारी दुहाई आ गई सुबह सुबह गीत दोपहर नु गाने ए दुहाइयां दो चल दी तक दिन था दो दुहाइयां तक दिन कई बारी ऐसे दिन तक दे है कई बारी ऐसा नहीं तू हुन उन्होंने तक क्या हुन सीधे मुंह तक दे। क्या लिखा है बाइबल में? लिखा है नहीं मैं पुरानी मशकों में नहीं बढ़ती इसलिए कि वो क्या हो जाती हैं, फट जाती है। नहीं कभी तुसी महीना में वलीमे ते जाओ एक तो जगह पाड़ के जाओ भाइयों की गल वक्खी पाड़ी हुई इथों तक है बीड़ी तरह इथों भी पाड़ी हुई है तो जाओ हो जाए वलीमे से वो सारे बंदे आखिर पागल पागल इसको क्या हो गया। और पहले पूछते भाई कितने डिगा एक बंदे ने ना पैंट पूरी पाड़ी हुई थो वो जो निशाने लगे होंगे ने वो मुंडिया ने मैं क्यों डिगा तू आंदा नहीं मैं निशान बनाया। मैं क्या कितने डिगा तेरे गोडे गोडे वावा रगड़े हुए नहीं सर जी मैं क्या इधर नहीं बन सकता आके कामों से खुदावन जाने। कई बार सारे वाल हो जाते उधर साई साड़ी पैंटा हो जी साड़ी इंज ड्रेसिंग हो जी है साढ़े स्टाइल हो जी। बाइबल क्या कहती? बाइबल में लिखा है हम सही हैं। क्या है? बाइबल ने तो दुनिया को जीना सिखाया, दुनिया के उस्ताद हम हैं, बाइबल है। आमीन। बाइबल क्या कहती? बाइबल ने कहा मैंने तेरे नाम की क्या दी है, क्या दी है, क्या दी है और मेरे सांप की कुर्बानी के माने मेरी दुआ तेरी हुजूरी में पहुंचे। और बखूर की माने जिन्हें के दूधों को और बखूर जो था वो इबादत के अंदर इस्तेमाल होता था। इबादत के अलावा ना तो उसे कानूनी ऐसा जुर्म था उसे इस्तेमाल नहीं किया जाता था, वो सिर्फ काहिन इस्तेमाल करते थे। मेरी बहनों मेरे भाइयों बाइबल हमें सिखाती है, कहता है मैंने मेरी दुआ तेरी सुन में शाम की कुर्बानी की मानत पहुंची। आमीन। ते शाम नु ते सानू नींद आउंदी हुंदी है, शाम नु ये सानू भुख लगी हुंदी बहुत। हां जी शाम नु तो और बड़े काम होते, लेकिन बाइबल क्या कहती? खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है। आइए बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठा के बोलो, दोनों हाथों को उठा के बोलो। मत्ती रसूल की इंजील उसके साथ आपके अंदर लिखा मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे ते जो अद्धे के गाने मंगने तो अद्धे के गीत मंगने तो फिर की होना, फिर कख भी नहीं मिलना है। कई बार ना आप जाइए ब्याह शादी पहले दुआ कर लो फादर जी ने पाजी साहब साथ के मोड़ के दे गेड़ा काट दे गेड़ा पता केड़ा केड़ा गेड़ा लम दे फिर बाद च गेड़े ब्याह तो 4-5 महीने बाद निकले होंगे फिर ऐसे निकलते थे। फिर महल्ले वालों पता निकला भी गेड़े जेडे दिते सी ना वो कदी आनू जा रहा गेड़ा कदी आनू जा रहा कदी आनू जा रहा। बाइबल क्या लिखी कहती है वो गेड़े दिते होते ने जो निकल देते ना। बाइबल क्या कहती है? लिखा क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है। ये तो मेरे जिंदा करांगा तुम सीधे हाँ जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाते उसके वास्ते खोलना चाहेगा। ते केड़ा दरवाजा है जी खटखटांदा? यीशु मसीह वाला, ओदे रूह कुद्स वाला, ओदा होली स्पिरिट वाला। शाम की कुर्बानी एवं नहीं रखा के मेरी दुआ तेरी हुजूरी में शाम की कुर्बानी की जी जो दाऊद कहता है जेवे कुर्बानी हाथ चुक दे तो
बंदा दुआ, और ये कुर्बानी तेल के साथ जो रूहुल कुद्स की रहमत है, फिर बखूर लबान के साथ। एक मिनट काका बात कर ली सो मैं करे थे गो, और उसके बाद एक और सुने, और तीनों आके बस कर, तू वेट एंड कर दे, बस कर, इन होश कर बात, ये चुके देखो तबला। और फिर ऐसा है कि नमक और लबान जो फसल की निशानी है, और जो उसके बाद बाइबल कहती है नमक जो उनके साथ है ये वफादारी की। अच्छा ब्याह कई बार याद है आपको, ब्याह करें अगली बार समझ के बार बार खुशी का वक्त है। अच्छा खुशी बार ये सुर कोने चलाना, अगर इस वक्त आ नाचे साढ़े नाल, साढ़े को लत मार पिछों, हाँ वो लत्ता फिर 4-5 महीने बाद निकलती है कड़ाल जो पाई होंगे। बाइबल क्या कहती, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो, जो आगे लिखा है, और तुम ऐसा कौन सा आदमी है अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे। आमीन। आगे का लिखा है, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे। पर जब के तुम पूरे होकर अच्छे अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। आमीन। मैं कहता हूँ जब हम ब्याह शादी सालगिरह मंगनी में जब हमद के गीत गाएंगे फिर गेड़े सानू नहीं होंदे रहंदे, फिर बलीस नूं होंदे रहंदे। हालेलुया। किन्नू गेड़े दे रहा अपने नहीं, तू दो सानू दे जा, हैं दो दे भी तेरे दे जा, बल्कि एक एक सारी फैमिली में दे जा। क्या दाऊद कहता है, खुदा का बंदा कहता है मैं तेरे नाम की दुहाई, उसकी हमद और उसकी परस्तिश, उसकी स्तुति, उसकी मदद सराई जब आप गई तन अबलीस में गेड़ा इंज चढ़ता रहेगा। तक होने इस तो का अपने आप को गेड़े नहीं चढ़ाने, अबलीस नु गेड़े केड़ा अपने आप नु इंज चढ़ाना चाहता है कोई नहीं। वेरी गुड। अबलीस नु केड़ा केड़ा इंज चढ़ा, मैं तो रोज एक चढ़ाना सुबह दोपहर शाम, तुसी अबलीस नु गेड़ा नहीं चढ़ाना चाहते हैं? हैं चुको हैं ਅਸੀਂ ਤੇ 3-4 गेड़ा जिदे दाल के मैं गेड़ा चढ़ा देना। बाइबल पढ़ के गीत गाकर हम करके प्रस्तुत करके बाइबल की स्टडी करके, क्योंकि बाइबल में लिखा है। और काजी के नाम में किसने किया था? बेवाने किया ना। तो आप क्यों नहीं कहते? आप आते जाते हम के गीत गाओ, गाते और बैठते लेटते उठते वक्त बाइबल में स्पेशल की किताब में लिखा मैं उठते बैठते लेटते वक्त तेरी हमद करूंगा। क्या करूंगा? और कई बारी ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚੌਖਟਾਂ ਤੇ ਇੰਜੇ ਆਇਤਾਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਇਤਾਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇੰਜੇ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟਿਓਟਾ ਹੈ ਉਹ ਰਕਸ਼ਾ ਹੈ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ तो ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਚਲਨੇ ਵਾਲੇ का मुंह काला। मैं कहते तो ਵੇਖੀ ਕਿਨੇ ਛੱਡ ਟੁੱਟਾ ਜਿਹਾ ਰਕਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਲਨੇ ਵਾਲੇ। मैं कि ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਨੇ ਛੱਡਣਾ है? बस वो हमारी सोच हमारे ख्याल उससे मैच करते हैं, उससे मैच नहीं करते, नीचे वाले से मैच करते। क्या लिखा है? मैंने तेरी दुहाई दी है साधक कोया मुझे मारे मेरे सर पर क्या होगा, और मैं उससे इनकार नहीं करूंगा। आमीन आमीन। मैं उससे इनकार नहीं करूंगा। और आगे क्या लिखा है? खुदा का कलाम से कहता जब मैं तुझसे दुआ करूं मेरी आवाज पर कान लगा, मेरी दुआ तेरे हुजूर बखूर की माने तो मेरे लबों को बुराई से बाज रख। क्या कर? बाज रख। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं, जब सुलेमान को जब खुदा ने कहा मांग मैं तुझे, बोलो मांग मैं तुझे, तुझसे क्या मांगा? हालेलुया। हरी क्या मांगा? इससे पीछे एक बड़ा अमल हुआ है, उससे कितनी कुर्बानियां गुजारी है? दसेज में कितनी कुर्बानियां गुजारी? कोई गाल नहीं फिर है? हाँ ऊंची बोलो किनिया? हाँ भाई हाँ नकल ही कर लो पहना दी एक किनिया। मैं ढाडे नाल नहीं परेशान हो किनिया 1000 1000। अच्छा आप देख लो नहीं होए अद्धी दाड़ी लंघ जाती, मसाला लाओ ऐसी कर लो, लाइट खून कर लो, देख लाओ फलां कर लो। 1000 कुर्बानी सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक उससे कुर्बानी गुजारी। तो फिर खुदा रात को उसके साथ जाकर बोला आमीन। पहले उसने कुर्बानी गुजरानी, उसने तेल भी दिया होगा साथ, नमक भी, लुबान भी,
जो फसल है, जो वफादारी है, जो रूह को उसके लामत 1000 गुजारने का फिर खुदा रात को उसके पास आया, कहता बोल तुझे क्या। मैं आपके लिए पढ़ने लगा हूं, ऐसा पहला सलातीम 3 बाब उसकी 4-5 ऐसा पहला ऐसा है सलातीम 3 बाब 4 तो 5। और बादशाह जबून को गया ताकि ऐसे है कुर्बानी करे, क्योंकि वो खास ऊंची जगह थी। सुलेमान उस मजबा पर 1000 सोख्तनी कुर्बानी गुजरानी। जबून में खुदा रात के वक्त सुलेमान को ख्वाब में दिखाई दिया। खुदा ने कहा मांग मैं तुझे क्या दूं, मांग मैं तुझे। जब हम खुदा की हजूरी में झुक जाते हैं, आप वो कुर्बानियां तो नहीं चाहता, अब चाहता है मेरी रब की बॉडी की कुर्बानी, आमीन, रोसे की कुर्बानी, दुआ की कुर्बानी, टाइम की कुर्बानी। टाइम मांगता वो आपसे, फिर खुदा आपसे बोलेगा बाप तुझे क्या चाहिए। फिर जब आप मांगे खुदा कहेगा आले हालेलुया। कई बार वो मांगते रहे हो देंदा नहीं, मंगन से तरीका नहीं सही। आप बावलपुर जाना है तब हैड राजकाली गड्डी दे नहीं बैठे कभी है, लेकिन बाइबल कहती बाप मैं तुझे क्या दूं। उसने पहले कुछ दिया है, अपना पूरा परिवार उसका साथ क्या होगा, ऐसा हो गया या नहीं, उसकी पूरी फैमिली साथ होगी। वो खुदा की हजूरी में कुर्बानियां देता रहा और खुदा ने कुर्बानियों की खुशबू लेकर फिर उससे कहा बाप मैं तुझे क्या दूं। आमीन। जरूरत है। दाऊद कहता है मैंने तेरे नाम की दुहाई दी है, दुहाई उसकी देनी चाहिए। सुबह शाम उसे कहे मेरी जबान पर पहरादार बैठा दे, मेरे लबों पर पहरेदार बैठा दे, ताकि मेरे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले जो तुझे पसंद है। सो खुदा हम सबको बड़ी बरकत है। आमीन।